Good morning, friends. You're most welcome in class ninth. We are here to study mathematics. Yes, easy maths learning. That is the name of the channel. I have just started a channel for you all for making you understand the mathematics in a better way. Exactly, you will become better in mathematics because mathematics is one of the easiest subject. Yes, mathematics is one of the easiest subject. Try to understand that it is fact that mathematics is one of the easiest subject because it is only the subject which is having only four operations. You can understand that mathematics is based on four operations: addition, subtraction, multiplication, and division. The student who understand all these four operations, definitely for him, for her, mathematics is one of the easiest subject. So in class ninth, again we'll start from the basics only. The first chapter of class ninth is number system. That is one of the simplest chapter. Try to understand. If you will do just a little work, you will do that particular chapter better. And please keep in mind that mathematics is one of the easiest subject. Okay, so now we are starting the first chapter of class 9, that is number system. Exactly, as I think you all understand about the numbers. What do you mean by numbers? That you know very well. The mathematical symbols which are just establishing the relationship between the entities. Might have you seen in the market? Suppose you just went for a grocery shop. Definitely, if you will ask for the 1 kg sugar, suppose it is cost 40 rupees, 2 kg 80 rupees, 3 kg 120 rupees. So these are the mathematical quantities. These are the quantities which are just represented with numbers 1, 2, 3 kg and 40, 20, 80 and 120 rupees. So exactly numbers are just establishing the relationship between the entities. Okay, now come on the number system what we are studying. Okay, so very first we are starting with the simplest number or the very first kind of number. These are called the natural numbers. Very first you have started to study with these numbers. मैथमेटिक्स में जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं. ऐसे तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन होनी चाहिए. The number exist in nature are called the natural number. Yes. Why? Because you can see that we used to start counting from 1, 1, 2, 3, 4. Yes. So in the same way, natural numbers are just the counting numbers. So I am writing the definition. You must note down that all the counting numbers, all the counting numbers are called natural numbers. Natural numbers are uncountable, in the sense infinite. Okay, uncountable or infinite, which is not finite, that is called infinite. So you may understand that natural numbers are infinite. They are not finite exactly. You can, as we have just started the counting, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 100. Then after we'll just start the next unit of the number. So there is no end of the counting. There is no end of the natural numbers. The set of natural number is represented by n. It is 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinite. So that is just the natural number. If suppose you are including 0 in these natural numbers, so they will become whole numbers. Yes, whole numbers we are talking about. What are the whole numbers? So all the natural numbers, all the natural numbers including 0 are called the whole numbers. It's very simple. All the natural numbers including 0 are called the whole numbers.
Again the set of whole number is denoted by W, and definitely it is only 0 including in natural numbers. Again the whole numbers are also infinite, they are not exactly finite in numbers. Okay, so natural numbers and whole numbers, you need to, I am just using the word infinite. You should know that in mathematics infinite is not defined exactly, then only sometimes it is considered as a number. Yes, it is denoted by that symbol. I am just letting you know, this is the symbol of infinite or not defined. You must note down this. This is the symbol of not defined or infinite. Exactly it is not a number, है ना. Sometimes it may be asked that infinite is a natural number. No, but natural numbers are infinite in numbers. That you need to understand. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं है. दे आर अनकाउंटेबल एग्जैक्टली, बट काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. इनफाइनाइट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रादर इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर. इसको नंबर कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन कई जगह इसको डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है. ध्यान रखिए. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. यू मस्ट नोट डाउन दैट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू मस्ट लर्न दैट. ओके, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं. तो प्लीज कहीं भी whenever you need, you just pause the video and note down this. Now we are just coming on the next number system, that is integers. Exactly on the basis of that, integers are exactly the complete system of numbers. What are the integers? That I am just letting you know. Integers, try to understand the definition very fast. Integers, all the distinct positive, negative numbers including zero are called the integers. Now I am just explaining that. What are the integers? Exactly, all the distinct positive, negative numbers including zero are called the integers. Distinct in the sense what? Try to understand the meaning of distinct. Distinct in the sense, suppose I am just counting these pens. Okay, this is one, this is another, and this is another. 1, 2, 3. These are distinct numbers. Okay, distinct. Otherwise, if suppose you are counting water, water cannot be counted because it is not distinct, it is continuous. So I hope you understand the meaning of distinct. अलग अलग, different. Okay, जैसे ये डिफरेंट 3 पेन्स हैं तो ये डिस्टिंक्ट है. 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा. वाटर में ऐसा नहीं होता, 1 लीटर के बाद 2 लीटर नहीं आएगा. सपोज 1 लीटर मिल्क आपको दिया है, दूध वाले जनरली थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा देते हैं, वो काउंटेड नहीं होता है, मेजर्ड नहीं होता है. तो कितना मेजरमेंट होगा वो? हार्डली 0.10 लीटर. 0.10 लीटर तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. 0.5 लीटर और 0.2 लीटर. ओके, so that 0.2 liter, you understand that 0.2 liter, it is continuous, hence 0.2 is not integer, it is something else. Integers are 1, then after 2, 3, 1, 2, 3. So yes, you may understand they are also counting numbers. Positive integers are counting, negative integers are non-counting, but just the negative of these are counting numbers. And 0, yes, 0 is neither negative nor positive. Try to understand that. Okay, so the set of integer is represented by z. The set of integer, the set of integers is represented by z. ये z means what? Z is just made up of a word zehi. Okay, in German language the number system are called Zahlen. The integers are called Zahlen in German. Why? Because Zahlen in the sense to count, counting numbers. Okay, to count. So exactly
it is denoted by z. Sometimes it is denoted by I also. Okay, so it may be represented as z, that is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, from minus infinite to plus infinite. Is it clear? But all distinct numbers, these are integers. Now this z is just made up of z plus, or these may be represented as z greater. This is the symbol of greater. You understand, it is the set of all positive integers, means natural number 3, 4, 5, 6 and so on. Similarly, z less or z negative, this I negative also you may represent as, it is negative integers, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. Is it clear? These are the integers. My dear student, I know that you have also studied the negative integers, positive integers, as well as in the same set integers we have seen the even numbers, the odd numbers, the prime numbers, the composite numbers. I hope I understand you know all such things. Okay, I expect rather that you should know the definition of these numbers. Please note down this fast, as it is just pause the video and note down that it is one of the most important system. Now I am just making it clean. यहाँ तक तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है. I know that. I hope that you understood all the systems till here. अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो you know the operations on the integers. Integers में ही I am just making a chart. Okay, and I hope you will understand the chart. Integers can be just divided into 4 parts. Not exactly they are divided, but even numbers, they are integers. Okay, just the multiple of 2 are called the even numbers. 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Okay, then odd numbers 1, 3, 5, 7, 9 and so on. These are called the odd numbers. Then prime numbers I am just letting you to know the definition. मैं केवल आपको definition बोल के बता रहा हूँ, आप understand कीजिए. Prime numbers are the numbers which are divisible by itself and one only. मतलब the numbers which are having only 2 factors. ऐसे नंबर हैं जिनके 2 फैक्टर है केवल, 1 और वो खुद. जैसे 2 is the smallest even prime number. 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है. 1 is not a prime number. Okay, so 2 is the smallest prime number. So 2, 3, 5, 7, 11, then 13 and so on. They are the prime numbers. The numbers except 1, those are not prime, are called the composite numbers. What are the composite numbers? Composite numbers are not prime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. So these are the composite numbers. You may understand that these composite numbers are just composed by the prime numbers. ये composite number जो है ये prime number से compose हुए हैं. See that 4, 2 is multiplied by 2, 4, 3, 6, 2 is multiplied by 3, 6, 8, 2 is multiplied by 2 is multiplied by 2, 9, 3 is multiplied by 3, 10, 2 is multiplied by 5. In similar way, and this is called the prime factorization. तो ये सब आपको पता है. एक डेफिनेशन में आपको नोट करा रहा हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी, पता होना चाहिए, बट इट्स ओके अगर नहीं पता है तो. दैट इज को-प्राइम नंबर्स.
ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कोप्राइम नंबर बहुत काम आने वाला है। व्हाट आर द कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो अ पेयर ऑफ नंबर, a pair of numbers, a pair of numbers, कौन से numbers? Positive integers we are taking. You may take negative also, but then only I am writing positive integers. A pair of numbers which do not have any common factor, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। उनको क्या कहा जाता है? कोप्राइम नंबर्स। जैसे 2 3 कोई कॉमन नहीं है, 2 5 कोई कॉमन नहीं है, 4 7 कोई कॉमन नहीं है, 4 5 कोई कॉमन नहीं है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं, जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, वो तो हमेशा कोप्राइम होते हैं। अदर नंबर्स वी कैन डिटरमाइन, दूसरे ऐसे नंबर भी जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं एक दूसरे से, जिन और जो किसी और पर्टिकुलर एक नंबर की टेबल में भी नहीं आते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड द कोप्राइम नंबर्स। जैसे 8 एंड 9 दोनों कोप्राइम है। वाई? दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। 8 एंड 11 एक टेबल में नहीं आते हैं। 8 एंड 15 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। 2 में 8 आता है, 3 में 15 आता है, 5 में 15 आता है, लेकिन 5 में 8 नहीं आता। 8 एंड 15 दे आर कोप्राइम। ओके, तो कोप्राइम समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स कोप्राइम, that you understood all. Okay, you may see that the integers are also exactly divided into 3 parts. One is 0, one is negative integer -1 -2 -3, then positive integer 1 2 3 4. इसको प्यार से हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। घर का नाम होता है ना निकनेम, इसका निकनेम है नेचुरल नंबर्स, दैट इज 0 एंड इट इज नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया। ये z माइनस से रिप्रेजेंट, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 है। इट इज ओनली अ नंबर, सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है। प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। ओके, सो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वी आर जस्ट स्टार्टिंग। पॉज करके नोट करना है, नोट करिए। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर्स। प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नाउ अब यहां से आपके लिए थोड़ी सी नई चीजें आएंगी। पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही होता है। रेशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। आप देखेंगे कि इंटीजर्स भी इसमें है। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, सिमिलरली ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सिंपलेस्ट। ऑल द numbers which can be expressed in the form p upon q such that q is not equal to 0. ओके, ये रेशो से बना है। रेशो होता है ना दो नंबर का, 2/3 इज अ रेशो। सो 2/3, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऑल द नंबर्स which can be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0, and p and q क्या है? They belongs to z, and
P and Q are co-prime. मैंने अभी डेफिनेशन बताया था, P and Q are co-prime. Try to understand. एक मेरी बात नोट कर लो आप, प्लीज नोट डाउन दिस. One is co-prime with all the numbers. One is co-prime with all the numbers. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वन सब नंबर्स के साथ कोप्राइम होता है. वन इज कोप्राइम विथ ऑल मींस डिनोमिनेटर में वन तो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, वन तो हो सकता है. तो P and Q आर कोप्राइम. ये हो गया all the numbers which can be expressed in the form of P upon Q such that these are called rational numbers. Rational numbers. Okay. Now the set of rational numbers. The set of rational numbers. The set of rational numbers is denoted by Q. Capital Q जो होता है वो होता है. Okay, I am just representing Q. See that Q is equal to X, such that X is equal to P upon Q. Q is not equal to 0. P and Q belongs to Z. Okay, this is just the simplest definition of the rational number. I hope कि आप डेफिनेशन अंडरस्टूड कर गए होंगे. ओके, अभी डेफिनेशन समझिए, अभी बहुत आगे जाने की कोशिश मत कीजिए कौन से नंबर्स होते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, यू जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो रेशो के फॉर्म में नंबर से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो सारे नंबर दे आर कॉल्ड. ओके, are called the rational numbers. The set of rational number is denoted by Q. Q is represented like this. You must note down this by just pausing the video. Just pause the video for 1 minute and note down the definition. This is one of the most important definition. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Types of rational numbers देखते हैं क्या होगा. rational number देखो यहाँ पे ऐसा माइंड मैप बनेगा जो अभी तक का पूरा नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर देगा. ओके, just see that rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? P upon Q. All the numbers where Q is not equal to 0. Q 0 नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? Q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 and so on. -1 -2 -3 -4 -5 and so on. ओके, अब इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो जहां पे Q1 है और एक जहां Q1 नहीं है. ओके, मैंने पहले आपको बता दिया है कि P और Q क्या है, यहां कोप्राइम है. ओके, तो इफ Q इज इक्वल टू 1, अगर Q 1 है, एंड इफ Q इज नॉट इक्वल टू 1, Q अगर 1 नहीं है, तो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. व्हाई? बिकॉज दे आर 4 upon 1, 7 upon 1, 9 upon -1. यहाँ 1 और -1 भी कर लीजिए. हाँ, 1 और -1. ठीक है, या तो Q 1 है या -1 है. तो इस कंडीशन में नंबर्स क्या रहेंगे? 4 upon 1 4 होगा, 7 upon 1 7 होगा, ये -9 होगा. तो ये इंटीजर्स हैं, दे आर इंटीजर्स. ओके, 17 upon -17 upon -1 दैट इज 17 हो जाएगा. समझ में आया आपको? तो आई थिंक दे आर द इंटीजर्स. नाउ नॉन इंटीजर्स की बात आ रही है. नॉन इंटीजर्स की बात आ रही है तो जब डिनोमिनेटर 1 नहीं है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द सिंपल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड ऑन. ये सब 1 से छोटे. सपोज वी आर जस्ट गोइंग 3/2, है ना, ये 1 से ग्रेटर है. जब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो 1 से ग्रेटर ही होगा. 4/3, ओके, 5/2, ओके, 5/3, 5/4. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स भी रेशनल होते हैं. दे आर कॉल्ड द नॉन इंटीजर्स. मैंने इनका नाम नहीं बताया आपको. नॉन इंटीजर्स.
नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स. ओके, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय z and this is expressed by zc, z complement, where z is not there, z complement is there. तो ये हो गया नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स. ओके, सो ऑल द फ्रैक्शंस ये सिंपलेस्ट रेशो में होते हैं. देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे अगर आई एम राइटिंग 12/4, इज इट अ रेशनल नंबर? यस, इट इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट इन द परफेक्ट फॉर्म. ये p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले क्लियर किया है कि p एंड q क्या है, को प्राइम है. एंड 4 और 12 को प्राइम नहीं है. क्यों? 12 4 की टेबल में आता है. दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 12/8. इट इज नॉट अ, ये भी को प्राइम नहीं है. ओके, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है. अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 3/2 आएगा. यहाँ करें 4 से तो 3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? 3/1 ये को प्राइम है, 3/2 ये को प्राइम है. ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो दे आर द इन द एग्जैक्ट फॉर्म. इज इट क्लियर? तो ये होते हैं रेशनल नंबर. प्लीज कीप दैट इन माइंड. इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर के और कौन से टाइप्स होते हैं. अभी यहाँ तक समझ लीजिए आप कि दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स. ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से बहुत सारी चीजें स्टार्ट करनी है. प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट. वही वीडियो को पॉज करके नॉन इंटीजर और इंटीजर रेशनल नंबर्स को नोट कर लीजिए. नाउ वी आर गोइंग अहेड. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं. जैसे देखिए, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन देखता हूं. फाइंड और इंसर्ट क्वेश्चन. इंसर्ट, कोई आपको ऐसा लिख दिया, इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स between 2 and 3. 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है. यस, बिकॉज 2 and 3 2/1 3/1 है. सो 8 रेशनल नंबर इसमें इंसर्ट करना है. तो दैट्स वेरी सिंपल. सी सॉल्यूशन. गिवन दैट 2 and 3. अब देखो, मैथ्स का रूल है कि सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, है ना, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई एग्जैक्टली एनी नंबर बाय एनी नंबर विदाउट एनी रीजन. बिना रीजन के आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, अगर मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, है ना. जैसे सपोज 2 है, 2 आई मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 20, सो इट विल बिकम 40/20. एग्जैक्टली ये तो 2 ही है ना. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस. ओके, और हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2/3 और 4/3, दे आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. ये क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस होती हैं. इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो. अगर इसको डायरेक्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट यू कैन राइट 6/3. सीधा सीधा लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा. तो सबसे बड़ी बात है कि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना. हालांकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, लेकिन हमको 8 रेशनल नंबर इसमें इंसर्ट करना है. तो व्हाई कांट वी मल्टीप्लाई इट? 8 + 1 मींस 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई किया. एंड 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 9 से डिवाइड किया. दैट विल बिकम 18/9 एंड दैट विल बिकम 27/9. सो नाउ यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? देखिए बहुत इजीली हो गया. अब 18/9 क्या है? 18/9 9 to the 18 2 है. एंड 27/9 क्या है? 3 है. अब इनके बीच में 19/9, देन 20/9, देन 21/9, देन 22/9, देन 23/9, 24/9, 25/9 एंड 26/9. इज इट क्लियर? ये 8 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए इनके बीच में. ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द लाइक फ्रैक्शंस. इसको लाइक फ्रैक्शन बनाए रखा. लाइक फ्रैक्शन बनाए रखने के बाद हमने इसमें 8 नंबर इंसर्ट कर दिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. आप समझ गए होंगे. दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो प्लीज 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 यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. अगेन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. देखिए, सपोज insert 8 rational numbers
अगर यहाँ पे होता ये 2/3, instead of 2 it would be 2/3, and this instead of 3 it would be 5/9. सपोज ये होता है ना, तो दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। हाउ विल वी कन्वर्ट, गिवन दैट 2/3 and 5/9। ओके, अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 and 9 का। 3 and 9 का एलसीएम में यहाँ निकाल के बता रहा हूँ, वैसे तो आप सबको पता है 3 9 का एलसीएम 3 1, और ये 3 times 3 1 1 3 3 था 9, 9 इज द एलसीएम, तो मैं यहाँ 9 लिखूंगा, यहाँ 9 लिखूंगा। नाउ दिस 9 विल बी डिवाइडेड बाय 3, विल गेट 3, so 3 will be multiplied in 2, and 9 will be divided by 9, 1 will be multiplied in 5। यहाँ फिर से देखो, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं फ्रैक्शंस को किस तरह से डील किया जाता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसी तरह से मैं यहाँ डील कर रहा हूँ। 3 और 9 का मैंने एलसीएम निकाला है, दोनों एलसीएम को अपने अपने प्लेस पे रखा है। नाउ दिस 9 will be divided by 3 will get 3 ratio, and this 3 will be multiplied in this 2, so 2 into 3। now this 9 will be multiplied in 9 will get 1 will be multiplied in 5 will get 5। okay, so this will become 6/9 and 5/9। now they are the like fractions। अब हमको 8 इंसर्ट करना है, अगेन ये मल्टीप्लाइड, ये स्मॉलर ये ग्रेटर है, पता है, आगे पीछे लिख देंगे इसको, ये एलसीएम वाला मिटा रहा हूं मैं, बाय मल्टीप्लाइंग दिस will be multiplied by 9। now 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 6 या 54/81 and 45/81। now 45/81 and 54/81 लिख दीजिए इसके बीच में, 45 then 46/81, then 47/81, then 48/81, then 49/81, then 50/81, then 51/81, then 52/81, then 53/81। this is the way by which I have just inserted the desired number of rational numbers in between two rational numbers। दो रेशनल नंबर के बीच में जितने भी उन्होंने कहे थे उतने रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर का इंसर्शन। रेशनल नंबर किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आता होगा। देन ओनली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, addition and subtraction. suppose 2/3 plus 5/9 plus 3/5 minus 4/7। suppose इसको solve करना है। that's very simple। we'll just take the LCM of the all 3 5 7 9 3 5 7 9। you will just divide it by 3। here 3 again 3 1 5 7 1, then 5 1 1 7 1 and then 7 1 1 1 1। यहाँ पे हम 7 5 are 35, 9 are 315। ओके, one 315 sorry। okay, so 9 27 4 31। yes, okay। now we are just dividing the 315 by 3। जब 315 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 105। ओके, 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 then 0 then 5 will be multiplied with that 2। वो जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
9 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 35 विल बी मल्टीप्लाइड इन 5, ओके। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे देन 63 आएगा, 63 विल बी मल्टीप्लाइड इन 3, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे सो 45 आएगा, 45 विल बी मल्टीप्लाइड इन 4। नाउ विल जस्ट सॉल्व इट, ये अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, सपोज ये आता है 210 प्लस 5 5 सा 35 का 5 कैरिंग ओवर 25 2 5 3 15 2 17 175 प्लस 63 तो 189 3 3 सा 9 3 6 सा 18 माइनस 45 4 सा 180 upon 315. Now this 180 9 and 9 5 14 का 4 carrying over 1 7 8 9 2 1 394 upon 315. This is your answer. Is it clear? So you may understand that it is the addition and subtraction of the rational numbers. You must understand that. और आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए. आई विल गिव यू द शीट्स. जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज नोट डाउन माय कांटेक्ट नंबर, दैट इज 881 777 4114. ओके, आप मुझे कांटेक्ट करें. आई विल सेंड यू सम शीट्स जस्ट बेस्ड ऑन द सेम. मैं कुछ वर्कशीट भेजूंगा हर दिन. अगर आप वीडियोस देखेंगे, एक एक सीरीज देखते जाएंगे, वर्कशीट सॉल्व करते जाएंगे, आई होप कि हम बहुत जल्दी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कवर कर लेंगे. ठीक है, आपका मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो जाएगा एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. आपके लिए बहुत आसान रहेगा. तो प्लीज नोट डाउन दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. चलिए, नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे आ जाते हैं हम. बोर्ड मास तो आपको सबको पता होगा. बोर्ड मास बिल्कुल वैसे फॉलो होगा जैसे इंटीजर्स में होता है. अगर हम 2/3 is being multiplied by 4/5, so no problem, you will just numerator will be multiplied by numerator and this denominator will be multiplied by denominator. Similarly, अगर ऐसा होता कि 2/3 will be divided by 4/5, okay, this may be like this. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2/3 was divided by 4/5. So cross multiplication is only way. This 5 will be multiplied in 2 and this 4 is multiplied in this 3. So it will become 5 to 5. This 2/3 will be multiplied by 5/4. Divide means the same. So it will become 10 upon 12. That's very simple. Is it clear? आप उसके बाद कैंसिल करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर सपोज ऐसा होता है कि 2/3 will be divided by 4 or 5 suppose. So you may write it 5/1. So it will become 2/3 will be divided by 5/1. So bus cross multiplication 2/3 into 1/5. So it will become 2/15. Okay. अगर सपोज ऐसा होता कि 2 is divided by 5/3 तो बहुत सिंपल होता. हम यहाँ पे 2/1 लिखेंगे. So that will be written as 2/1 upon 5/3. Cross multiplied 2/1 into 3/5, 6 upon 5. So मैंने सारा डिवीजन आपके सामने एक्सप्लेन किया है. ये इसी तरह से होता है. प्लीज कीप इट इन माइंड एंड ऑलवेज try to solve the some specific questions. Okay, now I am just making it clean. Now we are coming over the representation of the रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. नंबर स्केल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर स्केल. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है. आप वीडियो देखने के बाद मुझसे वर्कशीट ले सकते हैं. कोई भी स्टूडेंट प्लीज कॉल मी फॉर द वर्कशीट. आई विल सेंड यू द वर्कशीट. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर स्केल. सी दैट्स वेरी सिंपल. ये बहुत आसान है. आप सभी ने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है. ये नंबर स्केल होता है 1
3 -1 -2 एंड -3, ये नंबर स्केल है। अब सपोज आपको 2/3 को मैं रिप्रेजेंट करके बताता हूँ आपको। इज इट क्लियर? सपोज इट इज 2, ये 2 है आपका, ये 0 है। दिस पर्टिकुलर स्पेस may be divided into 3 equal parts, that is 2/3. This is 2 times 2/3 means 4/3, and this is 3 times 4/3 means 6/3, that is 2. Is it clear? So this was your 2/3, first 2/3 है ना। अगर हम 0 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 2/3 होगा, सेकेंड पार्ट 2 into 2/3 होगा, और थर्ड पार्ट 3 into 2/3 होगा। That will be understandable for you all as I think. Okay, please note down this fast. Yes, now this is just the simplest conversion. आप डिवाइड करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम देखेंगे ये, that is all in that. Now conversion of decimal numbers into the fractions and fractions into decimal numbers. Fractions को अगर decimal में convert करना है, suppose 4/3 you are having and you need to convert it into the decimal form. Convert into decimal form. यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप सभी लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, all the rational numbers can be written in either decimal form और फ्रैक्शनल फॉर्म। ये यहाँ पे आपको बहुत समझने की जरूरत है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, या तो वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में, दोनों में लिखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या एक डेसिमल है जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे 4/3, पहले मैं 4/3 के पहले आपको 3/10 का एग्जाम्पल देता हूँ, या 3/4 का एग्जाम्पल देता हूँ। दैट इज वन ऑफ द सिंपल 3/4। 3 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, so 4 definitely there is no number, so we'll write 0. Now here 0, we'll write decimal, so 4 7s are 28, so now 2 here again we can write a 0, 4 5s are 20, that is all. So 3/4 can be written as 0.75. they are called the terminating decimal, इनको बोलते हैं terminating decimal। लेकिन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, अगर किसी डिनोमिनेटर में 4 हुआ, 2 हुआ और 5 हुआ, 2 5, 2 और 5 इन द सेंस 4 अगर है तो 2 और 2 है, मीन्स 2 है, 8 है तो 2 है, 5 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, 25 है तो 5 है, 125 है तो 5 है, देन आफ्टर जो भी 625 है तो 5 है। मीन्स 5 का कोई भी मल्टीपल, 2 का कोई भी मल्टीपल, या 5 और 2 दोनों का मल्टीपल, 5 2s are 10, तो इट विल गिव अस द टर्मिनेटिंग डेसिमल। दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। और दूसरा, अगर नहीं है 2 और 5 नहीं है तो क्या होता है, जैसे 4/3 सपोज हम डिटरमाइन करते हैं, 4 3 3 1s are 3, 1 बचा यहाँ पे, अगेन जस्ट विल पुट द डेसिमल, सो यहाँ 10 हो जाएगा, 3 3s are 9, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 किया, फिर 3 3s are 9, फिर 1 किया, 0, 3 3s are 9, फिर ये चलता ही रहेगा। मीन्स 1.3 बार या 1.33 इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा चलता ही रहेगा। सो इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैं दिखाऊंगा डेफिनेशन, आप चिंता न करें। सो दैट इज जब डिनोमिनेटर में 3 है तो 1.3333 बार ये जो होता है, तो ये यहाँ पे हम 1.3333 बार को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
4/3 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, 4 के 3 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, और या फिर 1.3 को भी अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल डू। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल इन द कन्वर्जन। कन्वर्जन आप समझे होंगे, मैं अभी डेसिमल कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। अब 1.3 बार है, हाउ विल बी कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन? यहाँ पे एक पॉइंट है, हाउ विल बी कन्वर्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और वो है हाउ विल बी कन्वर्ट द, जैसे मान लीजिए टर्मिनेटिंग है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नोटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल नंबर में करिए। फर्स्ट है 7/4। आप समझ गए होंगे 7/4 कौन सा है? 7/2 इंटू 2, 7 2 प्रेजेंट है, क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट। या 31/25, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 45/8, ये भी टर्मिनेटिंग है, या फिर 47/8×5=40, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी सॉरी दैट इज ऑल, ओके। अभी दूसरे में करके बता रहा हूं आपको, 5 में 17/3, 23/5, नहीं 5 3 15, ओके। यहाँ पे 3 भी प्रेजेंट है 5 के साथ, तो ये डेसिमल बनेगा नहीं बनेगा, आप देखिएगा, ओके। 19/8 3 24, और मैं 8 दे रहा हूँ 283/120, ओके। तो ये अब आपके को मैं आपको इसमें से केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। सपोज मैं 47/40 ले रहा हूँ, तो 47 विल बी डिवाइडेड बाय 40, तो 1s आर 40, 7 बचेगा, 70 हो गया, पॉइंट आ गया 1.1, फिर 40 आ गया, 30 आ गया, 0 300, तो 8 आ गया, है ना, 8 नहीं 47 था 280, देन 20 बचा है, 200 किया, 5 200, 1.1075। इज इट क्लियर? यहाँ पे 1 ठीक से दिख नहीं रहा है, 1.1075। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हमने 40 से डिवाइड किया तो टर्मिनेटिंग मिला। अब हम इसको 23 को 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 23 इज डिवाइडेड बाय 15, 1 15, 8। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाया, 80 किया, तो 15 5 75, बचा 5, यहाँ 50 कर देते हैं, 15 3 45, बचा 5, 50, 15 3 45, बचा 5, 50, 15 3 45, एंड सो ऑन। तो 1.53 बार, 3 के बाद बार लग गया, 1.53 1.53 बार। इज इट क्लियर? तो यहाँ बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ बनेगा टर्मिनेटिंग। सो दिस इज फॉर होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। इन सारे नंबर्स को आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है। प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट, ओके। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, दैट्स वेरी सिंपल वे, ओके। नाउ ये तो हो गया, डेसिमल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। इफ सपोज हमको डेसिमल फॉर्म गिवन है और हमको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। सपोज इंस्टेड ऑफ इट वुड बी रिटन एज फ्रैक्शनल फॉर्म, fractional number. Suppose the first number is 4.75, second number is 12.25, ठीक है, third number is 1.3 बार। यहाँ आपको लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखना है हमको। दूसरा है 2.28 बार, ठीक है। ये
4 नंबर्स हैं हाउ टू कन्वर्ट. सो वेरी फर्स्ट सोल्यूशन, अगर मैं 4.75 की बात करूं तो दैट इज नथिंग 475 अपॉन 100 होगा. वाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम 1 के बाद 2 zeros लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 475 कैन बी रिटन एज 4.75 कैन बी रिटन एज 4.75 अपॉन 1. तो यहाँ जब डेसिमल हटता है तो ये 2 जीरो को प्रोड्यूस करता है, तो दिस विल बिकम 475 अपॉन 100. आप डिवीजन करते होंगे, 2 जीरो को कैंसिल करके 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाते होंगे, तो ये वही है, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है. ये तो फर्स्ट हो गया आपका. सेकेंड हो गया 12.25 अपॉन 1 लिख दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा 1225 अपॉन 100. ओके, सो दीज आर द 2 नंबर्स. दैट्स वेरी सिंपल. नाउ वी आर कमिंग ओवर द 1.3 बार. ये नोट कर लीजिए पॉज करके. नाउ 1.3 बार गिवन दैट, यहां से हम एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 1.3 बार. हमने x के इक्वल रख दिया 1.3 बार. अब देखिए यहाँ पे 1.333 इनफाइनाइट टाइम से है ना. अब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है ना. ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.333 बार. देखो जब भी 10 से यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, अगर हम 1 से डिवाइड करके 0 इंक्रीज कर रहे थे तो डेसिमल हट रहा था. अगर हम 10 से किसी भी 0 की डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हट जाएगा और डेसिमल एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. इन द सेंस दिस विल बिकम 13.33 बार. 10x इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने 3 थे? इनफाइनाइट 3 थे. यहाँ कितने बचे? अगर सपोज इनफाइनाइट में से एक गया तो कितने बचे? इनफाइनाइट बचे. तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल राइट इज, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम सेकेंड इक्वेशन में से 10x इज इक्वल टू 13.333 बार और यहाँ है x इज इक्वल टू 1.333 बार. इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 9x आएगा. दैट इज ऑल. 333 बार पूरा कैंसल, तो डेसिमल के बाद 0. 13 माइनस 1 12. सो x विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 9. अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा 3 से अगर करें तो 3 4 12 एंड 3 3 9 4 अपॉन 3. x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3 और x क्या माना था हमने 1.3333 बार. सो वी कैन राइट, सो द आंसर इज 1.33 बार इज इक्वल टू 4/3. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दैट आंसर. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. अगर कहीं ऐसा लग रहा है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए इट वॉज गिवन 1.3 बार, 1.3 बार गिवन था. मैंने x इज इक्वल टू 1.33333 बार, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, x मान लिया. अब इस x में 10 का मल्टीप्लाई किया. 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 के पीछे 1 डिजिट होती है 10 और यहाँ डेसिमल में कितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? केवल 1 डिजिट का. 1 डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होगा तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट का होगा तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो 10x इज इक्वल टू 10. नाउ दिस विल बिकम 13.333 बार. सब्ट्रैक्ट किया 10x माइनस x, 13 माइनस 0.333 बार, 1.333 बार, यहाँ 0 हुआ 12 हो गया. बस डिवाइड कर लिया x को. दैट इज द वैल्यू ऑफ द 4/3 को होता है 1.33 बार. ओके, सो यू अंडरस्टूड. आई होप आपको समझ में आया.